Am I making sense? So sorry, ये recording मैं on करना भूल गया था. So I'm going to start it again. Atomic structure. Basically, in this we are going to study primarily about how the atoms look from inside and how this inside look of the atom is going to help us in order to explain the chemical interaction of an atom with other atoms of its same type or of different type. The basics of this atomic structure begins with theory postulated by Dalton in year 1808 in form of Dalton's atomic theory, which was discarded in light of Faraday's law of electrolysis, or this law actually sets a background for uh, a way forward in order to discard the Dalton's atomic theory. ठीक है? It was finally overthrown. I mean, the Dalton theory was finally overthrown uh, with the help of CRT experiment. CRT experiment uh, by Thomson. Thom- Thomson. ठीक है? Sir J. Thomson. This again happened in year Thomson's. The experiment happened in 1897, and the theory came into being somewhere around the same time. I mean, 1897 to 1901 is the time when this. अच्छा, based on this experiment, he postulated the first modern theory about atom, that was plum pudding model. Plum pudding model of atoms. ठीक है? However, this theory was again very naive theory. So uh, it was primarily the aura of Thomson which led other scientists to think that this theory might be right, but otherwise there was nothing great about this theory or this model of atom, and it was soon discarded in the light of another experiment which we will study. तो यहाँ पर CRT एक्सपेरिमेंट होता है, फिर उसके बाद ART होता है, और फिर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन होता है. डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन. ठीक है? और ये 1932 में होता है. ART 1897 के इमीडिएटली बाद अराउंड 98, मतलब बिफोर 1900 ART भी हो जाता है. एनोड रेज ट्यूब. पॉजिटिव चार्जेस का हमको पता चल जाता है. यहाँ से नेगेटिव चार्जेस का हमको पता चलता है. CRT से कैथोड रेज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होती है, नेगेटिव चार्जेस का पता चलता है. उसके बाद एनोड रेज ट्यूब से हमको पॉजिटिव चार्जेस का पता चलता है, और न्यूट्रॉन हमको काफी देर के बाद पता चला. तो एंड इसके बेसिस पर, इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्टेंस के बेसिस पर प्लम पुडिंग मॉडल थॉमसन पोस्टुलेट करते हैं. बाद में एक नया एक्सपेरिमेंट कंडक्ट होता है, ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट, एंड दैट वाज कंडक्टेड बाय रदरफोर्ड. रदरफोर्ड. ठीक है? इट इज कॉल्ड एज द रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट. commonly known as Rutherford's gold foil experiment. These were some of the experiments which altogether changed the course of science. Uh, the way we used to know, or the level of our understanding of science changed entirely on the basis of these groundbreaking experiments. One such experiment was this, no doubt,
The second such experiment was this by Rutherford, and this experiment was conducted. I mean, the Rutherford was a disciple of, or he was actually a student of, PhD student of J.J. Thomson. He did his PhD under J.J. Thomson. So the experiment which was conducted by Thomson was discarded by another scientist, Rutherford, who was nothing but his student. And there is something great about Thomson. Uh, he himself was very nice uh, scientist. I mean, he has discovered a lot of things or invented a lot of things, made a lot of things. Okay? But on top of that, he has been a mentor to a set of scientists who later on became uh, renowned personalities. ठीक है, रदरफोर्ड एक है, रदरफोर्ड के अलावा भी इनके साइंटिस्ट ये हैं, क्या बोलते हैं, स्टूडेंट। रदरफोर्ड, अच्छा, ही हिमसेल्फ गॉट नोबेल प्राइज। इनका बेटा भी इनके अंडर में ये था, पीएचडी स्टूडेंट था, ही गॉट नोबेल प्राइज, रदरफोर्ड गॉट नोबेल प्राइज, एंड इनके और 3 स्टूडेंट्स को नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, so he is considered, or he was in fact considered in that era, or even today जो भी लोग साइंस पढ़ते हैं उनके लिए he is, if you are deep into science, so J.J. Thomson is a role model. If you know science just by periphery, then Newton and Einstein are, obviously Einstein is the apex. If you foresee something which is unknown, or it's something which is not so easy to understand and interpret, even after, you can say, 105, 110, 115 years of what he gave 100 years back. Even today, like इंजीनियरिंग में जाओगे आप लोग तो फर्स्ट ईयर में स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़नी होगी, एंड यू विल सी कि स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ने में या समझने या इंटरप्रेट करने में आज भी आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, एंड उस चीज को 115 120 ईयर्स बैक उस बंदे ने पहली बार सोच के एक्सप्लेन किया, एंड विदाउट हैविंग एनीथिंग इन हिज पॉकेट, लाइक कोई भी एक्सपेरिमेंटल बैकअप नहीं था उसके पास, एंड ही स्टिल पोस्टुलेटेड दैट, एंड आज हम उसको पढ़ रहे हैं, एंड वी नो कि दैट इज ट्रू, दैट इज नॉट समथिंग जो कि ट्रू नहीं है। अब हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस भी हैं उसके। तो yeah, Einstein is definitely a league apart, no doubt. But then Thomson is a very revered and respected personality in terms of, I mean, whenever we discuss and talk about science, because of his own contribution in terms of CRT, and more importantly, the group of students he actually harbored, ठीक है ना, who later on became prominent personalities. So Rutherford gold foil experiment, and on the basis of this experiment, it was first time that we knew about nucleus. ठीक है, nucleus and periphery. इसमें हम लोगों को पेरीफेरी, और इसके बेसिस पर, ये एक्सपेरिमेंट की ही बेसिस पर रदरफोर्ड ने फिर प्लानिटरी मॉडल, प्लानिटरी मॉडल प्रपोज किया, प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, और प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम्स के बाद, this thing happened in year 19, I think the exact year of Rutherford experiment was 1911. ठीक है, and this model was forwarded again
1912-13 तक this model was proposed. ठीक है. This model, the time span of this model was again very small, because of some parallel things which were happening around in other streams of science. ठीक है. Two such things were, पहला तो again there was a scientist named Planck, energy quantization. Energy quantization concept. और इसमें एक कंट्रीब्यूटर हमारे आइंस्टाइन भी थे. आइंस्टाइन, थ्रू हिज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. नाउ ये जो एनर्जी क्वांटाइजेशन कॉन्सेप्ट था, ये देने वाला, इसका थ्योरेटिकल बैकिंग देने वाला प्लैंक था. प्लैंक हैज गिवन द थ्योरी ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी. बट उसका पहला एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो था, दैट वाज अगेन फॉरवर्डेड बाय, एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, आइंस्टाइन ने भी उसका थ्योरेटिकल प्रूफ ही दिया था. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करके एक चीज इन्होंने बनाई, थ्योरी बनाई, वो थ्योरी ही थी. उसका एक्सपेरिमेंट किसी और ने कंडक्ट किया, बाद में किया. ठीक है. नहीं, बाद में नहीं किया, पहले ही हो चुके थे. उसको क्लब करके थियरी जो थी वो प्रपोज किया. और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो थियरी है, ये पढ़नी भी है हम लोग को, मैं पढ़ाऊंगा. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके अंदर में ये होता है कि लाइट अगर किसी भी मेटल सरफेस पर गिरता है और लाइट के पास सफिशिएंट एनर्जी होगी, तो वो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करता है. और इलेक्ट्रॉन्स को जो इजेक्ट करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स का स्ट्रीम जब बाहर निकलता है तो वो करंट के फॉर्म में निकलेगा. दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो मतलब लाइट, लाइट गिरा और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बाहर फ्लो हुई. ठीक है. इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, therefore it is called photoelectric effect. So Einstein photoelectric effect helped somehow in Planck's quantization concept, energy quantization. ठीक है. तो ये चीजें भी हम लोग in course of study after this model we are going to deal with this. और यहाँ पर फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा वेव्स के बारे में भी बताऊंगा. हाउ डज वेव्स लुक लाइक, वेव्स के पैरामीटर, वेव्स एंड पैरामीटर. वेव्स यूनिक क्या है, नंबर वन. फिर वेव्स को आइडेंटिफाई करने वाले एक्सपेरिमेंट्स वगैरह का थोड़ा सा बताऊंगा, आइडिया दूंगा आप लोगों को, उनके बारे में डिस्कस करूंगा. द रीजन व्हाई वी डू इट इज बिकॉज ऑफ द नेक्स्ट थिंग विच इज गोइंग टू हैपन. हाँ, और इसके अलावा एक और चीज, आई विल डिस्कस अबाउट अ साइंटिस्ट नेम्ड मैक, नहीं, एक सेकेंड, मैक्सवेल. मैक्सवेल, ठीक है. इनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई कॉन्सेप्ट के बारे में आई विल डिस्कस जस्ट 2-3 लाइंस. ठीक है. और ये क्यों डिस्कस किया जाता है, क्योंकि इसी के बेसिस पर या इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके देयर केम अ साइंटिस्ट कॉल्ड नील्स बोर. ठीक है. हु प्रपोज्ड बोर्स थ्योरी एंड prepared the background or prepared the ground, or in fact we can say that this theory uh, actually led to the downfall of this planetary model. ठीक है. So planetary model of the atoms was replaced by Bohr's theory और Bohr's model. ठीक है. और उसकी बैकिंग जो आई हमारी, वो इसी से आई. किससे आई? मैक्सवेल्स ईएमआई थियरी जो थी, उसने कहीं ना कहीं हमको बैकिंग दिया कि वाई प्लेनेटरी मॉडल शुड बी डिस्कार्डेड. ठीक है. एंड
ये दोनों मॉडल्स जो थे, मतलब ये प्लैंक्स थियरी या आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये पैरेलल थियरी जो बिल्ड करी बोर ने, उसमें कहीं थोड़ा सा हेल्प प्रोवाइड किया, बैकग्राउंड प्रोवाइड किया। अच्छा, यहाँ पे बीच में एक चीज और मैं बताऊंगा। यहाँ से यहाँ जब हम लोग मूव कर रहे होंगे 1 से 2 पर, देर इज समथिंग कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट। मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो बोर्स थ्योरी आता है, बोर्स थ्योरी के बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेव्स, मैक्सवेल्स। अब फाइनली बोर्स थ्योरी और बोर्स मॉडल ऑफ एटम जो होता है, इसके अंदर भी लाइक इट इज नॉट कंप्लीटली फुल प्रूफ। बोर्स मॉडल, in fact it is also short lived, and we had to discard it as well। बचपन में अभी तक जो हम लोग पढ़ते आते हैं, वो इसी के बेसिस पर प्रिडिक्टेड जो मॉडल होता है, उसी के बेसिस पर हम एटम को पढ़ते हैं। बट दिस इज अगेन नॉट ट्रू, ठीक है। तो इसके बाद की जो मॉडल का जो मॉडल है, दैट इज नोन एज शॉर्डिंजर्स मॉडल। एक्चुअली शॉर्डिंजर्स मॉडल भी नहीं बोलते हैं उसको, वेव मॉडल बोलते हैं। वेव मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, ये डिस्कस करूंगा। बट इन दोनों के बीच में देर आर 2 3 थिंग्स विच वी नीड टू डिस्कस। द वन इज डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली मैटर वेव ड्युअलिटी, ठीक है। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी, सर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। डी ब्रॉगली मैटर वेव ड्युअलिटी में हम लोग ये पढ़ते हैं कि दुनिया में जो भी चीजें हैं जो चल सकती हैं या चलती हैं, ठीक है, कोई भी मैटर अगर वो चल रहा है, तो वो अपने करस्पॉन्डिंग एक वेव जनरेट कर रहा है, ठीक है। या कोई भी वेव अगर है, तो उसका करस्पॉन्डिंग मास, उसमें भी मास है, और उस मास को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस टाइप का वेव और पार्टिकल, इन दोनों की डुअलिटी जो थी, उसका ब्रिज जो था, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय डी ब्रॉगली, ठीक है। दिस इज अगेन अ वेरी पाथ ब्रेकिंग थिंग विच ही क्रिएटेड। इसके पहले तक लाइक पिछले 300 साल, दिस de Broglie matter wave duality, this happened in year, I'll just let you guys know, एक सेकंड दो मुझे। आई थिंक डुअलिटी वाला जो था वो कुछ 1928 वगैरह के आसपास में किया था उन्होंने। एक सेकंड में बता देता हूँ एग्जैक्टली। हाँ, 1924 में था, और 27 में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी था, ठीक है। दिस वाज इन 1924, दिस वाज इन 1927। तो सी, आप लोगों को पता है कि नहीं पता है मुझे नहीं पता, बट लाइट वगैरह के बारे में सबसे पहली डिस्कवरी, जो इम्पोर्टेंट डिस्कवरी थी, वो न्यूटन ने करी थी। लेंसेज के फॉर्मूलेज वगैरह निकालने का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब में भी उसने काम किया था, न्यूटन ने काम किया था। इट वाज नॉट ओनली द लॉज ऑफ मोशन जो कि न्यूटन ने दिया है, ठीक है, उसके अलावा भी न्यूटन के काफी कंट्रीब्यूशन है। ग्रेविटेशन में है, लॉज ऑफ मोशन में है, और फिर आपका ऑप्टिक्स और लाइट वगैरह के बारे में पढ़ोगे तो वहां पर है, प्रिज्म वगैरह या लेंसेज के बारे में इसने डिस्कवरी करी थी काफी सारी। तो
न्यूटन के पहले तक आ, हम लोग को ये लगता था कि लाइट या वेव जो होते हैं, लाइट वेव्स जो है, लाइट जो है दैट इज एक्चुअली अ स्ट्रीम ऑफ कॉपर सेल्स। ठीक है, मिनिस्कल पार्टिकल्स हैं जिनको हम लोग फील या टच नहीं कर पाते हैं, बट दैट इज स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल। न्यूटन दो चार पांच एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, एंड देयर आफ्टर फॉर नेक्स्ट 100 years or say 200 years, it was believed that this theory was wrong and we considered light as a wave। ठीक है, न्यूटन was somewhere in 1630s के आसपास में, एंड 1830s तक, 1850s तक we kept on believing that light is just a wave। ठीक है, later on 1850s से 1930s के बीच, 1920s, ये थियरी आने के पहले तक, ठीक है, ये प्लैंक्स एंड आइंस्टाइन मॉडल भी जो था, प्लैंक्स एंड आइंस्टाइन थियरी, और इसके थ्रू भी हम ये प्रिडिक्ट कर रहे थे, फिर से प्रिडिक्ट करना चालू किया हमने कि द लाइट इज हैविंग, और या द लाइट इज हैविंग पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो पहले लाइट क्या था, पार्टिकल था, फिर लाइट क्या बना, वेव बना, फिर लाइट क्या बना, फिर से पार्टिकल बना। ठीक है, और अब ऐसा था कि ये वाले एक्सपेरिमेंट भी 100% ट्रू थे, और इसके फेवर में भी एक्सपेरिमेंट जो थे वो 100% ट्रू हो गए, क्योंकि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट्स रिजल्ट जब हमारे पास है तो दे वेर वेरी मच, आई मीन दे वेर 100% अलाइन टू व्हाट थियरी से, perfectly aligned। Not only that, this theory was used to calculate, ये क्वांटाइजेशन का जो कांस्टेंट आएगा ना उसको बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। इस थियरी के बेसिस पर हम प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फिर डाउट ही नहीं रह गया कुछ भी कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी है। तो अब लाइट के पास वेव नेचर भी है और लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी है, दैट क्रिएटेड काइंड ऑफ a level of awkwardness among the scientists, light है क्या exactly, ठीक है, which was later on broken down by this de Broglie's matter wave duality। He proposed that okay, anything in this world, not only light, not only electrons, everything in this world is going to behave as matter as well as a wave if it is in motion। ठीक है, और उसके बाद से चीजें सॉर्ट आउट हुई, एंड देन came the Heisenberg uncertainty principle। इसने ये बोला अगेन concurrent to this matter and wave, कोई चीज अगर मूव कर रही है, ठीक है, और अब उसके मूवमेंट के ऊपर उसने कुछ चीजें बोली कि किसी भी मूविंग चीज का हम सर्टेनिटी के साथ पोजीशन और ये पोजीशन और मोमेंटम दोनों का सर्टेनिटी के साथ पता नहीं लगा सकते अगर पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक, मतलब बहुत छोटी पार्टिकल अगर होगी, तो हम उसका सर्टेनिटी, सर्टेनिटी का मतलब प्योरिटी के साथ उसका पोजीशन और मोमेंटम, पोजीशन और वेलोसिटी दोनों को साथ साथ पता नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए भी मैं मतलब एक बेसिक फंडामेंटल होता है जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, जिसके थ्रू आप इस चीज को रियलाइज करोगे कि वो क्यों नहीं किया जा सकता है। ठीक है, दिस इज एन एम्पेरिकल लॉ। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है ये एम्पेरिकल लॉ है, वी डू नॉट हैव अ काउंटर एविडेंस टू इट। ठीक है, दिस इज अ मस्ट टू बी फॉलोड थिंग इफ द पार्टिकल इज सब एटॉमिक लेवल, माइक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक है, जैसे हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो भी एम्पेरिकल लॉ है। एम्पेरिकल लॉ मतलब we do not have ever found anything which is contradictory to that law। ठीक है, we have never been able to design an experiment which is contradictory to that law, and therefore that is an empirical law। Getting this point? So Heisenberg uncertainty Yes. principle, इन दोनों के बेसिस पर then comes the wave model of atom, backed by there is
Basically, a equation forwarded by Schrödinger's 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 इक्वेशन, ठीक है। Schrödinger's इक्वेशंस के अंदर में होता है आपका एक्चुअली लाइक 3 डायमेंशनल इक्वेशन होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ पर सिर्फ ये इक्वेशन हमको पढ़ना होता है, मतलब इक्वेशन सिर्फ जानना होता है कि फॉर्म क्या है इक्वेशन का, ठीक है। उसको सॉल्व नहीं करना होता है। बिना सॉल्व किए हुए, द ट्रेजेडी इज दिस, कि बिना सॉल्व किए हुए इसके आउटकम्स जो होते हैं, सॉल्यूशंस जो होते हैं, मतलब इक्वेशन हमको पता है कि ये इक्वेशन है, इक्वेशन ए बी सी, ठीक है। इसको सॉल्व नहीं करना है। क्या नहीं करना है? सॉल्व नहीं करना है। बिना सॉल्व किए हुए जो आंसर आता है, ठीक है, इस आंसर का नेचर डिस्कस करना है, ठीक है। और ये सर आंसर, आंसर दिया हुआ होगा। हाँ आंसर बताऊंगा मैं। दैट इज द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क। दिस चैप्टर इज द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क इन एंटायर कोर्स ऑफ केमिस्ट्री। द रीजन इज वेरी मच सिंपल। इसमें इतनी सारी चीजें आपको पढ़नी होती हैं कि मतलब ये चैप्टर एक्चुअली आपको फिजिक्स में सबसे आखिरी में पढ़ना होता है। एटम्स मॉडल और न्यूक्लियस का मॉडल जो होता है, दैट इज द लास्ट चैप्टर इन फिजिक्स। जब पूरी फिजिक्स आप पढ़ लेते हो तब आपको ये पढ़ना होता है, और केमिस्ट्री में इसी से चालू करना होता है, ठीक है। इट इज द बेसिस जहां से हम स्टार्ट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लगभग ऐसे समझो कि फिजिक्स की बहुत सारी चीजें आप लोग यहाँ पर सीख जाते हो, या सिखाना पड़ता है। अगर आप सीखते हो तो ठीक है, और नहीं सीखते हो तो फिर चीजें एज इट इज आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं, थोड़ा याद करना पड़ेगा। I'll try my level best to explain all the things in most rational manner, but at the same time I'll expect कि आप लोग भी थोड़ी सी एफर्ट डालें उसको समझने में। आई नो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि अभी आप लोग को कुछ भी पता नहीं है और ये सारी चीजें आपको बताई जानी है, ठीक है। तो इक्वेशन से जो आंसर्स यानी सॉल्यूशंस जो उसके आते हैं, सॉल्यूशंस, आंसर्स ना बोले सॉल्यूशंस बोले, तो और उन सॉल्यूशंस का नेचर डिस्कस करना होता है। और ये सॉल्यूशंस जो होते हैं एक्चुअली यहाँ से ही आते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन से। दे आर कॉल्ड क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर, ठीक है। इनको जोड़ करके बनता है ऑर्बिटल्स, या ऑर्बिटल्स कोई चीज होती है जिसके हम ये अज्यूम करते हैं कि इसी एरिया में या इसी वॉल्यूम में एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन रह रहा है, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल का स्पेसिफिक लोकेशन, पोजीशन एंड साइज, ये इंडिकेट करता है हमको क्वांटम नंबर, ठीक है। और ये क्वांटम नंबर जो होते हैं यही होते हैं सॉल्यूशंस हमारे श्रोडिंगर इक्वेशन के, ठीक है ना। और ये श्रोडिंगर इक्वेशन का फॉर्मूलेशन जो होता है वो होता है वेव मॉडल से, इलेक्ट्रॉन के वेव मॉडल से, ठीक है। और इसके बेसिस पर फिर हम लोग फाइनली आखिरी में चैप्टर के सीखते हैं। ये सारी चीजें सीखने के बाद वी लर्न द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर ऑर्बिटल्स के शेप, साइज, लुक, बिहेवियर, all these things we are going to do over here, ठीक है। Then we will have electronic configuration। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के लिए हम लोग 3 चीजें पढ़ेंगे। और वन थिंग इज ये अफबाउ प्रिंसिपल,
The second thing is Hund's rule, and then last thing is Pauli's exclusion principle. Pauli's exclusion principle. ठीक है, एंड ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही हमारा चैप्टर एंड करेगा। कुछ थोड़ी सी चीजें और बताऊंगा, छोटी मोटी चीजें दो तीन, और डीजेनरेसी वगैरह तो इसी में कवर हो गया रहेगा। पेनिट्रेशन पावर एंड ऑल, पेनिट्रेशन पावर एंड पेनिट्रेशन पावर के अलावा एक चीज और होती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्क्रीनिंग इफेक्ट बेसिकली बोल सकते हैं। पेनिट्रेशन पावर एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग, ठीक है, एंड so these things are going to be the last or closing words regarding this chapter. अब इसके बाद जो आएगा वो चैप्टर आता है हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जिसमें इन चीजों का यूज करते हैं हम, और इसको यूज करके केमिकल एंड केमिकल बिहेवियर को यूज करके एंड वी ट्राई टू प्रेडिक्ट और वी हैव प्रिपेयर्ड और डिवाइडेड और कैटेगराइज द एलिमेंट्स इनटू डिफरेंट पीरियड्स एंड ग्रुप्स। और वो पढ़ने के बाद फिर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं, और केमिकल बॉन्डिंग में एक बार फिर से ये साइज, शेप ऑफ ऑर्बिटल, लुक, उसके बेसिस पर जो स्ट्रक्चर बनेगा मॉलिक्यूल का उसको ट्राई करते हैं एक्सप्लेन करने का, एंड वो सारी चीजें आगे बढ़ती हैं। केमिकल बॉन्डिंग के बाद फिर गैसेस स्टेट आता है एंड द साइंस कीप्स ऑन मूविंग। ठीक है, तो इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी दीज मेनी, गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. Yes. Dalton's atomic theory. The first speculation about, or first formal speculation about how the atoms are going to look like was made with the help of this particular theory. Okay? It tells us how exactly the atoms are going to look like, okay, externally. It doesn't predicted anything internal, but हाँ external look उसका कैसा होगा उसके बारे में पहला prediction was definitely given by this particular theory. ठीक है, and what it predicted was, it simply said that कि तब तक के लाइफ में, मतलब अच्छा एक्चुअली डाल्टन ने किया क्या था, डाल्टन ने अपने से पहले 1808 में ये थियरी प्रपोज किया था, तो खुद भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया था उन्होंने 1801 1802 के आसपास में। ही गेव दैट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, राइट, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन इन मल्टीपल प्रोपोर्शन, वो हमने लास्ट में देखा था, लास्ट चैप्टर में मोल कॉन्सेप्ट में। तो वो और उसके पहले के जो लोगों ने काम करे थे उनकी सारी चीजों को कंबाइन करके जो थियरी उन्होंने दी थी, एटॉमिक थियरी, आई थिंक वो हम लोग डाल्टन एटॉमिक थियरी वहां पे किया था कि नहीं किया था? हेलो, किया था किया था ना? तो आई डोंट थिंक कि सर फिर, मेरा नहीं हुआ है। अच्छा आपका नहीं हुआ है, ठीक है कोई नहीं, मैं लिखवा देता हूँ फिर से एक बार तो। No, सर एक बार वापस बताए ना, क्या बोला? हाँ, मैं जरा डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा अच्छा, नहीं मैंने बस यही बात बोली कि एक सेकेंड रुक जाओ तो।
हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि डाल्टन्स ने अपने प्रीवियस के साइंटिस्ट के जो भी वर्क थे उनको कंबाइन करके एंड ही सिंपली पोस्टुलेटेड दिस डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसमें एटम्स एक्सटर्नली कैसा दिखता है उसके बारे में ही हैज डिस्कस्ड। सो व्हाट ही हैज डिस्कस्ड इज कि एटम इज, एंड उसके पहले तक मतलब 1801 के पहले तक या 1808 के पहले तक it was just known that the atom is the smallest and simplest uh, form of matter. It cannot be further subdivided. तो डाल्टन्स ने अपने एटॉमिक थ्योरी के अंदर इसी चीज को बेसिस बना करके एंड सारी चीजें पॉस्टुलेट करी हैं, ठीक है, या सारी चीजें बोली हैं, बोल रखी हैं उसने। Am I making sense? So points of this theory are something like this. The first point which he makes is atoms are uh, indivisible, indivisible, and and teeniest, या फिर teeniest या फिर smallest, smallest form of matter. या फिर उल्टा लिख लें हम इसको, atoms are smallest form of matter which are indivisible, ठीक है। और दूसरा चीज, लाइक एटम्स के शेप एंड साइज के बारे में ये बोलता है कि एटम्स आर spherical in shape, ठीक है। For a shape is concerned, they are spherical and they are non-porous, rather they are uh, rigid spheres, ठीक है, are spherical in shape and are rigid। अब ये सारी चीजें जो उसने बोल रखी थी ना, वो एक्चुअली फिजिकल बिहेवियर्स के बेसिस पर बोल रखा था, ठीक है। ये तब तक हमको ये पता था कि सॉलिड, सॉरी लिक्विड, गैस को अगर कम टेम्परेचर पर लेकर के आते हैं तो लिक्विड बनता है, लिक्विड से फर्दर सॉलिड बनता है। अब पॉइंट ये है कि एटम्स अगर रिजिड स्फेरिकल बॉल्स नहीं रहेंगे तो किसी भी चीज को अगर सॉलिडिफाई कर देते हैं हम, गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड लेकर के आते हैं, ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में आने के बाद भी वो क्या होना चाहिए, कॉम्प्रेस हो जाना चाहिए, इजंट इट। तभी तो हम बोलेंगे ना कि वो रिजिड पार्टिकल से नहीं बना हुआ है। अदरवाइज हमको बोलना पड़ेगा कि हाँ ये रिजिड पार्टिकल से ही बना हुआ है, इजंट इट। हेलो। Yes, sir. यस सर। रिजिड के बदले ये क्या लिखा है, ATOMIO, और
ये वर्ड मैंने सुना नहीं है संदीप अभी तक। आई जस्ट चेक, मतलब ये मुझे लग नहीं रहा है कि नॉर्मल इंग्लिश वर्ड है। ठीक है। नहीं सर, मैंने पढ़ा था इसलिए नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मैंने अभी तक देखा नहीं है इस वर्ड को कभी यूज होते हुए। हो सकता है किसी लैंग्वेज में इसका मतलब वही इंडिविजिबल ही होता हो। ठीक है। अब बेसिकली था क्या ना, जैसे डाल्टन वाज नॉट इंग्लिश, ही वाज डच। ठीक है। पुर्तगीज थे। तो वहाँ की लैंग्वेज जो है डच, और वो थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, इंग्लिश से। अब फ्रांस की भी लैंग्वेज या जर्मनी की लैंग्वेज जो है वो थोड़ी डिफरेंट है इंग्लिश से। तो दे यूज डिफरेंट वर्ड्स फॉर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है। हो सकता है कि डच में इसको मे बी इंडिविजिबल बोला जाता हो। आई एम नॉट अवेयर ऑफ, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं है इस वर्ड को। आई जस्ट कंफर्म इट एंड विल लेट यू नो। अगर ये होता होगा, हाँ डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। बस यूज करने के टाइम पर ये ध्यान में रखना, ब्रैकेट में लिख दो। ठीक है। ये वर्ड अगर यस यूज कर रहे हो तो ब्रैकेट में लिख दो, अगर उसका मतलब वही होता है। ठीक है। और मैं एक बार इसको सर्च करके और फिर तुमको बता दूंगा कि क्या है इसका मतलब। फाइन। ओके जो भी सर। होगा, अगर होगा तो फिर हम लोग यूज कर लेंगे उसको, उसमें कोई इशू नहीं है। स्फेरिकल इन शेप एंड आर रिजिड। तीसरा चीज था एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर atoms of same element are or all the atoms of an element are same in all respect. We should write it like that. All atoms of an element are same in all respect. That is mass, size, color, etc. तीसरा, चौथा, atoms of different elements are different in all respect. Again, that is mass, size, color, etc. So these were the key points. और उसके बाद फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इसके नीचे में अपेंडेड है। ठीक है। बट की फैक्टर्स जो थे, पांचवा नंबर पॉइंट था एटम्स ऑफ different elements may combine in some whole number
ratio to produce may combine in some fixed whole number ratio. सर हल्का सा ऊपर करो ना 1 मिनट. डन सर. Some fixed whole number ratio to produce a compound. ठीक है, और आखिरी पॉइंट ये खुद ही इन्होंने अपेंड किया था कि इट मे कंबाइन इन मल्टीपल होल नंबर रेशियोज टू प्रोड्यूस टू डिफरेंट कंपाउंड. ठीक है, so this was fixed proportion and this was multiple proportion. Atoms of different elements may combine in multiple fixed multiple whole number ratios whole number ratios to produce different compounds, not two different, different compounds. ठीक है, सो यहाँ तक 1801 1808 में he proposed or he said that atoms are indivisible and smallest form of matter. ठीक है, बाकी सारी चीजें तो हमारे लिए टेक करने के लिए नहीं है, बट दिस इज समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसी को हम लोग या फिर साइंटिस्ट ने एक पॉइंट माना और इसको डिसअप्रूव किया थ्रू सम लॉजिक. ठीक है, एंड दैट लॉजिक वाज propounded first of all by Faraday's law of electrolysis. तो फराडेज का क्या कंट्रीब्यूशन होता है इसके अंदर में? Faraday's law of electrolysis. Electrolysis year 1813. इस लॉ में व्हाट ही प्रपोज, नहीं ही डिडंट प्रपोज, इट वाज एक्सपेरिमेंटल लॉ. एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट से जो चीजें आई उसको उन्होंने टैबुलेट किया और उसको प्रेजेंट किया. ठीक है, व्हाट ही गॉट एक्सपेरिमेंटली इज whenever electricity is passed through. अच्छा, ये वाला लॉ जो है ये डिटेल में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर में. ठीक है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर 12th में हम लोग को पढ़ना है. फिजिक्स में भी थोड़ा सा पढ़ाएंगे लोग, बट मेनली केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है 12th के अंदर में, उसके अंदर में हमको ये लॉ को पढ़ना है डिटेल में. यहाँ पर सिर्फ हम उसको लिखेंगे और उसका जो हिडन मीनिंग है वो समझने की कोशिश करेंगे और वो चीज फिर हम आगे अप्लाई करेंगे एंड विल प्रोसीड. वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द quantitative methods deployed in this particular theory, yeah, this particular law. Electricity is passed through uh, molten electrolyte or
molten electrolyte or electrolytic solution tend to generate not generate, it tend to separate constituent atoms of the electrolyte in their elemental or free state. ठीक है, सो व्हाट इज हैपनिंग, इसका जो भी मतलब है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में समझेंगे। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट टास्क है वो ये समझेंगे कि हमने सॉल्यूशन या मॉल्टन लिया, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करी, द मोमेंट वी पास द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, द मोमेंट वी पास द इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट हैपेंड, ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं यहाँ पर मेटल के फॉर्म में या नॉन मेटल के फॉर्म में अगर कॉम्प्लेक्स है, जैसे Na2SO4 है, ठीक है, Na2SO4 है तो कोई बात नहीं, एक पे सोडियम आएगा, दूसरे पे सल्फेट का SO2 आता है, ठीक है, तो इस तरीके से चीजें होती हैं। एनीवे जो भी हो, दोनों जगह पर ना मिले, एक जगह पे भी मिले, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है, हमारे लिए एक पर भी मिलना सफिशिएंट है, ठीक है। हुआ क्या इस प्रोसेस में, बेसिकली व्हाट ही सेड इज कि जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने के टाइम पर, और तब तक हमको ये भी पता नहीं था कि इलेक्ट्रिसिटी में होता क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट गॉट एस्टैब्लिश्ड ओनली आफ्टर 1900, ठीक है। थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट था, सीआरटी एक्सपेरिमेंट, उसके बाद हमको पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को हमने इलेक्ट्रिसिटी बोला, तो वो डेफिनेशन केम इन 1900 ओनली। उसके पहले तक हमको ये पता नहीं था कि इलेक्ट्रिसिटी एग्जैक्टली होती क्या है, ठीक है। उस एरा में फैराडेज टोल्ड अस दैट इलेक्ट्रिसिटी का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इलेक्ट्रिसिटी में जो चीज फ्लो हो रही है, ठीक है, वही चीज एटम्स के अंदर भी प्रेजेंट है, ठीक है, जिसकी वजह से जब वो मिसिंग चीज एटम्स के अंदर से जब उसको निकाल देते हैं हम, तो दो एटम्स आपस में चिपक के एंड या फिर कंबाइन करके और कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और जब वापस से हम वो चीज उन एटम्स में डाल देते हैं तो वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे NaCl, सोडियम लिया हमने और क्लोरीन लिया, इनको रिएक्ट किया तो ये बनाएंगे NaCl, ठीक है, Na+ बन जाता है और Cl- बन के एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजेक्शन करता है। ये हमको अभी पता है, तब पता नहीं था। ही सिंपली प्रपोज कि इलेक्ट्रिसिटी में जो चीज मूव कर रही है वही चीज एटम्स के अंदर भी प्रेजेंट है, जिसके लॉस या गेन के बाद, या लॉस, बेसिकली उन्होंने लॉस एंड गेन नहीं बोला था, उन्होंने बोला था जिसके लॉस की वजह से एटम्स डिफरेंट टाइप्स के आकर के एक दूसरे के साथ ज्वाइन होकर के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, और जब वापस से हम वो चीज सप्लाई कर देते हैं उन एटम्स को,
तो वो सेपरेट होकर के फ्रीली एंड इंडिपेंडेंट रह जाते हैं, ठीक है, एलिमेंटल स्टेट में एग्जिस्ट करने लगते हैं। एम आई मेकिंग सेंस? यस सर। यस सर। नहीं, ठीक है। तो अब ये मिसिंग लिंक क्या है, नोबडी न्यू टिल देन, एंड द मिसिंग लिंक वाज established ओनली, मतलब ये 1830 से लेकर के 1897 के बीच में वी वेर फाइटिंग टू, और वी वेर रियली ट्राइंग टू, we were trying to establish that how to separate that thing, वो जो स्मॉलर चीज है जो कि इलेक्ट्रिसिटी और एटम्स के बीच में कॉमन है, उसको सेपरेट कैसे किया जाए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैं भी आप लोगों के सामने डालता हूं कि सपोज मुझे एटम्स में से उसके अंदर से वो वाली चीज निकालनी है, ठीक है, एंड एटम्स कैन एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फेजेस, ठीक है। सॉलिड में एग्जिस्ट कर सकते हैं जब वो काफी कॉम्पैक्ट होंगे, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे, लिक्विड में थोड़े ज्यादा दूर दूर होंगे, और गैस, ठीक है। इन तीनों स्टेट्स में से किस स्टेट में एटम्स के अंदर से वो चीज निकाल के और सेपरेट करना हमारे लिए ज्यादा आसान होगा, या हम इजीली कर सकते हैं? व्हाट वुड बी योर आंसर? अगर अंदर सर एक कोई, बार क्वेश्चन रिपीट कर। हाँ मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं, atoms can exist in 3 different phases, ठीक है, solid state, liquid state, gaseous state, right? और सॉलिड में एटम्स, कई सारे एटम्स एक साथ कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में वो थोड़े दूर होते हैं, और गैस में वो बहुत ज्यादा दूर होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। नाउ द पॉइंट इज कि अगर एटम्स, मतलब एटम्स दूर दूर होते हैं गैसेस में, एटम्स के अंदर से मुझे वो कॉमन वाली चीज को अगर बाहर निकालना है खींच के किसी भी तरीके से, ठीक है, जनरली हम अप्लाई करते हैं, मतलब वो कॉमन चीज जो थी वो इलेक्ट्रिसिटी को रिस्पॉन्ड कर रही थी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के साथ ही वो कॉमन है, तो हम निकालने के टाइम पर भी उसको इलेक्ट्रिकल मेथड से ही बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, राइट। ये एक चीज तो श्योर थी, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ कॉमन है, तो उसको बाहर निकालने के लिए भी हमको इलेक्ट्रिकल मेथड ही यूज करना होगा। ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? यस सर। यस सर। द यस सर। ओनली थिंग वाज कि इन तीनों में से, ये तीन जो फेजेस हैं हमारे पास मैटर के, इनमें से कौन से फेज पर हम एक्सपेरिमेंट चालू करें सो दैट वी हैव अ बेटर चांसेस ऑफ सक्सेस। नाउ लिक्विड। I am putting this question in front of you guys, having your common sense and having lived up to last 10 years of your studies. You guys tell me, किस phase में we have greater chances to extract that hidden thing out of the atom? लिक्विड। क्यों? सर लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है स्पीड में। नहीं, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करना है हमको, हमको किसी चीज के अंदर से कोई चीज निकालनी है, किसी के अंदर से कोई चीज निकालना है। अच्छा, सिंपल सा, अब मैं एनालॉजी दे देता हूँ एक, दैट विल मेक यू हेल्प अंडरस्टैंड। सपोज मेरे पॉकेट में कॉइन्स पड़ा हुआ है, ठीक है, या एक कॉइन बॉक्स पड़ा हुआ है जिसके अंदर में गोल्ड या डायमंड पड़े हुए हैं, ठीक है। somebody want to snatch it from me using his magnet, ठीक है।
So it will be easier for him to snatch it if I am traveling in a crowded train or if I am walking alone on the road. मैग्नेट यूज करके, कंस्ट्रेंट यही है, मैग्नेट यूज करना है उसको. सॉलिड. हाँ, when I'm walking alone on the street, तब उसके लिए आसान होएगा Alone. मैग्नेट यूज करके मेरे पॉकेट से वो निकालना, या फिर क्राउडेड ट्रेन में. Alone. Alone, ठीक है ना. That is where we get our answer. It is the gaseous phase. जब atoms अकेले अकेले होते हैं, तो by application of electric field, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अंदर की चीज जो है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में फ्लो होती है. इलेक्ट्रिसिटी भी किसकी वजह से फ्लो होता है? क्योंकि वी हैव अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द बैटरी. ये बात नोन थी हमको कि देयर इज अ लेकिन तब हम उसको दूसरा चीज बोला करते थे, वोल्टेज नहीं बोलते थे, तब हम इसको ईएमएफ बोलते थे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. और वहीं से ये वर्ड आया है मोटिव फोर्स. इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाने के लिए जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ. बैटरीज का अभी भी हम ईएमएफ बोलते हैं, जबकि फोर्स से उसका कुछ रिलेशन नहीं होता है. इट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द बैटरी, जो कि करंट को फ्लो कराता है. देयर इज नो फोर्स इन्वॉल्व, राइट. तो पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, और इस वोल्टेज से हम इसके अंदर की चीज को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं. ठीक है. ऑब्वियसली अंदर की चीज को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो वोल्टेज जो चाहिए होगा वो बहुत हाई चाहिए होगा, और एटम्स जो होने चाहिए वो सफिशिएंटली फार स्पेस्ड होने चाहिए, राइट. ये दो कंडीशंस हम लोग को समझ में आती हैं, और इसको डिप्लॉय करके फिर अगला एक्सपेरिमेंट सीआरटी कंडक्ट होता है, जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा. ठीक है. आज के लिए हम लोग यहीं पर रुकेंगे, एंड we'll discuss the CRT experiment in next lecture. However, the background of CRT experiment has been prepared. CRT experiment का सेटअप और उसका एक्सप्लेनेशन फिर मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा. ठीक है. सर उसका फुल फॉर्म क्या है सीआरटी का? कैथोड रेज ट्यूब एक्सपेरिमेंट.